ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 25କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବନିସାରିଛି। ମନୁବାଦୀ ସୋଚ ରଖିଥିବା ଲୋକ ଖୁସିର ସହ ଆକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିକଲ 25 ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 25 କ'ଣ କହେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 25 ଭାରତକୁ ଏକ ସେକୁଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜନ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିପାରିବ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ବଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେହି ଧର୍ମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ସମାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉନଥିବ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିବ, ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 25 ଉପରେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଇଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ଟିକୁ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଇ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜୟମାଲା ବାଗଚି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା 1950 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1956 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ଏ କଥା କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର 1990ରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 25 ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 340, 341 ଓ 342 କ'ଣ କହେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଯେତେ କୋସିସ କଲେ ବି ସମ୍ବିଧାନର ଦାୟରାରେ ରହିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ସମ୍ବିଧାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ନୁହଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଗାର୍ଡିଆନ ଓ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାନୁନ ବନାଏ, ସମ୍ବିଧାନର ଦାୟରାରେ ରହି ସମ୍ବିଧାନର ବାହାରକୁ ଯାଇ କାନୁନ ସେ କେବେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ କାକା କଲସ୍କର କମିଟି କ'ଣ କହେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ କେସ୍, ହାଇକୋର୍ଟର କେସ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ शेड्यूल कास्ट व्यक्ति यदि ख्रिस्टियानिटी हुए ताहले तार रिजर्वेशन रहिबो ना। ये कथा भी मान्यवर सर्वोच्च अदालत कही जो अनुसूचित जाति बहुत खुशी खबर। ये जजमेंटा बहुत बढ़िया जजमेंट, जो जजमेंट फल हिंदू धर्म रे टर्चर होथिबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को रास्ता खोली देछि जे सिख धर्म को जीवा पाई एवं बौद्ध धर्म को जीवाई आउ कौनसी रुकावट नहीं। जदि अनुसूचित जातिर व्यक्तिटीए सिख धर्म को चली जाए ताहले तार रिजर्वेशन कहीं भी नष्ट करिपारिबे ना। ठीक सेहीपरि जदि बुद्धिस्ट धर्म को से ग्रहण करे, 1956 रे बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म को त्याग करी बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। तेणु 1990 मसीहारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी बाहरिला जे जदि अनुसूचित जातिर व्यक्तिटीए बौद्ध धर्म ग्रहण करे ताहले तार रिजर्वेशन कंटिन्यू रहिबो। अर्थात ये खबरटी कौन सी गोदी मीडिया कहू ना। अनुसूचित जातिर व्यक्ति मानकु ये खुशीर खबर जे हजार हजार व लक्ष लक्ष श्रेणीर अनुसूचित जाति आज बौद्ध धर्म को फेरी आसुछंती। संविधान ताकू मान्यता देछि एवं रिसेंट जजमेंट 2026 जजमेंट भी
सुप्रीमकोर्टर खंडपीठ जजमेंट आर्टिकल 25 देछि जे अनुसूचित जाति व्यक्ति माने अनुसूचित जनजाति कथा तो ये आसी नहीं और कहीं अनुसूचित जनजातिर कौन धर्म ही ना जदि आप आर्टिकल 342 को जाए देखिए सी नेचर को वर्शिप करे तेणु से कौन धर्म ग्रहण कले भी रिजर्वेशन उपर कौन क्षति हुए ना ख्रीस्टियन हेले भी रिजर्वेशन कंटिन्यू थाए बुद्धिस्ट हेले भी रिजर्वेशन कंटिन्यू थाए सिख हेले भी रिजर्वेशन कंटिन्यू थाए इस्लाम ग्रहण कले भी आदिवासी रिजर्वेशन कहीं हटई पारे ना किंतु अनुसूचित जाति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 अनुजाई यदि अनुसूचित जातिर व्यक्ति ख्रीस्टियन धर्म ग्रहण करे ताहले ता रिजर्वेशन खत्म हुए धर्म कहीं व्यक्ति परिवर्तन करे जदि आम सामाजिक कारण को तर्जमा करवा एट्रोसिटी कारण अत्यधिक एट्रोसिटी हेले गोटे व्यक्ति धर्म परिवर्तन करे काका कलस्कर रिपोर्ट को जदि आम पढ़ा आर्टिकल 340 को जदि पढ़ा आर्टिकल 341 को जदि पढ़ा आर्टिकल 342 को जदि पढ़ा ता सहित सहित जदि आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 15(4) को जदि पढ़ा और आर्टिकल 17 को जदि मिसैकी पढ़ा जे सामाजिक कारण एठी जना पड़ुछि आर्टिकल 17 एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी कथा कहूछि काका कलस्कर कमिटी का रिपोर्ट भी यही कथा कहूछि जे रिजर्वेशन धर्म को बेस करी नुहे रिजर्वेशन जाति को बेस करी हुई कारण हजार हजार वर्ष प्रताड़ित होता जाति धर्म एथिपाई परिवर्तन करिछि जे विशेष धर्म रे ताकू अपमान होइछि तेणु धर्म नारे ता रिजर्वेशन केबे किए क्षति करि पारिबे नाही यह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट काका कलस्कर कमिटी को बेस करी जजमेंटा देइथला बेले सुप्रीम कोर्ट रे केस चैलेंज होइतला एवं सुप्रीम कोर्ट काका कलस्कर कमिटी को नजर अंदाज करदेले एवं अनुसूचित जातिर व्यक्ति 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को बेस करी सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दला जे अनुसूचित जातिर व्यक्ति ख्रीस्टियन हेले ता रिजर्वेशन रहिबो नाही किंतु मजेदार कथा हैला जे 1956 सिख धर्म रिजर्वेशन रहिबो 1990 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रे बुद्ध धर्म को रहिले रिजर्वेशन हटिबो नाही आज समग्र भारत वर्ष रे सुप्रीम कोर्ट रो आदेश आसिला परे क्लियर हो गला जे अनुसूचित जातिर व्यक्ति माने बुद्धिस्ट हो पारिबे एवं बुद्धिस्ट रही से माने रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं पारिबे शेड्यूल कास्ट बेनिफिट नहीं पारिबे आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 342 एवं आर्टिकल 15(4) को आर्टिकल 17 प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हवा रास्ता खोलीगला बहुत बढ़िया जजमेंट टीए भारत रही शेड्यूल कास्ट लोक मान मिली किंतु मनोवादी अनुसूचित जाति लोक मान को भयभीत करवाई सोशल मीडिया रे ए प्रकार भ्यू रखुंती जो माने लॉ जानी नहांती से माने डरी जीवे शब्द मुझे कहीपरि ना ये प्रकार असंवैधानिक शब्द प्रयोग करी विभिन्न तर्जमा विभिन्न प्रकार व्यंग्यात्मक रूढ़ी बाढ़ुंट किंतु आपण मैंने जानवे 16(4) कौन पाई रही 16(4) एवं आर्टिकल 342 भितर सामंजस्य कौन आर्टिकल 342 अनुसूचित जातिर व्यक्ति मान को सरकारी चाकरी स्थान संरक्षण थिला बेले आर्टिकल 16(4) कहूँ सरकार चाकरी पर स्वतंत्र प्रिविलेज दिया जीव कारण ना काका कलेस्कर कमिटी अनुजाई एवं आर्टिकल 382 अनुजाई अनुसूचित जाति को अपमान करा जाउछि हजार हजार वर्ष पर्यंत टर्चर होती से सकाशे स्वतंत्र प्रिविलेज मिली 16(4) रे एवं सरकारी चाकरी समान अनुपात स्थान संरक्षण व्यवस्था कला बेले 15(4) स्पेशल प्रिविलेज भी प्राप्त करने कथा कहा जाइछि तेणु आपण माने विचार को नियंतु डरवा पैनिक नेबार किसी आवश्यक ना तेणु बाबा साहेब अम्बेडकर कहते जितेबाला आम लोक मैंने पचारि बाबा साहेब आम जदि बुद्धिस्ट हो आम रिजर्वेशन उपर प्रभाव पड़ो ना तो से समय बाबा साहेब अम्बेडकर हसी हसी कहते रिजर्वेशन आपणकर
प्रभाव पड़ो ना मुझे मोर सूट पॉकेट रखी संविधान नियम ए प्रकार भाव बनी जे 1990 मसीह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मजबूर होते जे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लोक मैंने रिजर्वेशन प्राप्त करें एक ऑर्डर आसी जो ऑर्डर फाइनल आज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 एंड 242 क्षमता 142 क्षमता बल को प्रयोग करी आर्टिकल 25 रे जो सेकुलारिज्म को रक्षा करी तार संविधान मर्यादा को बजाय रखी से क्लीयरली कहीदे जे अनुसूचित जाति सिख धर्म और बुद्ध धर्म को आसिले तार रिजर्वेशन उपर कौन प्रभाव हम ना एणिकी अनुसूचित जातिर लोक मान रास्ता खोलीगला भारत वर्ष लगभग 12टा स्टेट एंटी कन्वर्सन लॉ तैयार होते भी वर्तमान मिलता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुजाई एंटी कन्वर्सन लॉ कौन एफेक्ट हम ना एवं बुद्धिस्ट रिलीजन ग्रहण कले बौद्ध धर्म को आसीगले शेड्यूल कास्ट तार रिजर्वेशन रु कहीं हटे पारे ना एवं शेड्यूल कास्ट व्यक्ति भारतर सबु स्टेट रे अनुसूचित जातिर रिजर्वेशन प्राप्त होगापाई रास्ता क्लीयर हो गला। रिसेंटली 2027 जनगणना को केंद्र करी सुप्रीम कोर्ट रे एक केस दायर करागला कि भारत वर्ष रही आदिवासी मानक पाई खास करी जो नॉर्माटिक ट्राइब रहती आदिम जनवास जनजाति को स्वतंत्र भाव चिन्हट करा जाओ एवं सेमानकर इकोनॉमिकली सोशियली डेवलप करने गोटे केसटा अणागला एवं 2027 मसीह से स्वतंत्र कलम तैयारी करा जाओ जाति को चिन्हट करा जाओ। यही जनगणना 1913 मसीह नॉर्माटिक ट्राइब आमको देखा मिलता जहाँपर आउ ये जनगणना नॉर्माटिक ट्राइब आसी ना वर्तमान ए रिट पिटिशनटा को सुप्रीम कोर्ट खारज कर एवं एक टिप्पणी देछि जे आमे चाहूँ भारत वर्ष एक जातिविहीन समाज गठन करने। प्रश्न उठुछि एठी जेबे अनुसूचित जाति तार अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट को गला तेबे ए प्रश्न ए प्रकार टिप्पणी आसिला जे भारत एक जातिविहीन समाज गठन करने चाहिला बेले आउ अनुसूचित जनजातिर कलम तैयार करने पिटिशन कानूनी अनुजाई ठीक या ना जदि आप देखा आर्टिकल 17 को जीवा आर्टिकल 17 ही भारत वर्ष में कास्टलेस सोसाइटी कथा कहूँ जातिर समाप्त कथा कही एवं आपको जो मैंने जातिवाद कथा करती से विरुद्ध में क्रिमिनाल ऑफेंस ठिया हो जोटा कि एट्रोसिटी किंतु वर्तमान पर्यंत भारत सरकार 1940 रु आज पर्यंत भारत सरकार आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट कला ना कहीं आज शिक्षित समाज धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकार मागिबा आरंभ है बेले सुप्रीम कोर्ट जो कास्टलेस सोसाइटी कथा कही ग्रहण योग्य अटे किंतु आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करने सत्तारूढ़ दल और सत्तार बसी शासक दल नजर देवा आवश्यकता अच्छी एवं आर्टिकल 18 को इम्प्लीमेंट करी भारत वर्ष रही जो नाम पर जो शिरोनिम रही जो टाइटल को हटे देवा बहुत जरूरी कारण टाइटल द्वारा जाति चिन्हट करा जाए एट्रोसिटी संख्या बढ़ी चली आपण देखुं वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन वर्तमान पर्यंत जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना दयापूर्वक सब्सक्राइब करूँ अधिक जानापी आप इच्छा प्रकाश करते आम सहित जोगाजोग करूँ और भारत संविधान आर्टिकल 17 आर्टिकल 16 4 आर्टिकल 25 आर्टिकल 340 एवं आर्टिकल 341 42 ता सहित प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1956 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 को जानापी हेले आम सहित जोगाजोग करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।